آج یہاں پر درحال ہم سب سرپنچ پنچ اور یہاں کی عوام اکٹھے ہوئے ہیں. کل ایک پریس کانفرنس راجوری ڈی سی آفس میں کی گئی. ہمارے ہی گھر کے لوگ تھے 4-5 لوگ، جن میں میر صاحب تھے، مناف ملک صاحب اور گنئی صاحب. اصل میں درحال جب سے ہم سرپنچ بنے ہوئے ہیں، درحال ہمارا بس اسٹینڈ پہ آنا جانا لگا رہتا ہے، کیونکہ سرپنچ کا تحصیل کے ساتھ، بلاک کے ساتھ اور پولیس اسٹیشن کے ساتھ ایک رابطہ رہتا ہے. کچھ الزام تراشیاں لگائی گئی وہاں پہ. دیکھیے، جہاں تک میر صاحب کا مسئلہ ہے، ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے، وہ ہماری اپنی بچی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بچی بنے گی تو ہمیں فخر ہوگا اس کا. لیکن جہاں تک اور الزامات لگائے گئے، ہم اس کی نندا کرتے ہیں. جہاں تک تحصیلدار صاحب کا سوال ہے، وہیں میرے دوست مناف ملک صاحب نے 2-3 چیزیں وہاں پہ کہی ہیں. پہلی چیز یہ کہی کہ انہوں نے یہاں سے سبزی بھی لے کے گئے، گاڑیاں بھی لے کے گئے، اینٹیں بھی لے کے گئے، سب کچھ لے کے گئے. ایک طرف وہ یہ بات کہتے ہیں. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی پروفیسر ہے، دوسرا بھائی پٹواری ہے، تیسرا بھائی یہ انسپیکٹر بھی رہا یا تحصیلدار بھی ہے. تو نیچرلی ہے، اگر ان کے گھر میں ان کی بابیاں بھی شاید ٹیچر ہیں، اگر ان کے گھر میں رزق اللہ نے دیا ہوا ہے، تو پھر درحال سے سبزی لے جانے کا سوال یا سیخ کھانے کا سوال کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ویسے بھی ڈائبٹیز پیشنٹ ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ہم بھی لوگوں سے ملے ہیں آج صبح سے، لوگوں کو پوچھا بھائی کون ریڑی والا کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہی لوگ ہیں اپنے. رہا سوال گنئی صاحب کا، تو وہ ایک ایموشنل آدمی ہے، جذباتی آدمی ہے. ان سے جو بھی بلایا جائے وہ بول جاتے ہیں. ان کا بیٹا بھی میرا دوست ہے، چھوٹا بھائی ہے میرا. میری ان سے گنئی صاحب سے بھی بات ہوئی، وہ کہنے لگے جی مجھے غلطی سے بلوا دیا گیا. سوال یہ ہے کہ گنئی صاحب سے بڑے لیڈر یہاں پہ بھارتی جنتا پارٹی کے اقبال ملک صاحب ہیں یہاں پہ، بیت اللہ رینجر صاحب ہیں یہاں پہ، کرامت درد صاحب ہیں یہاں پہ، حمید ماسٹر صاحب ہیں یہاں پہ. بہت سے لوگ ہیں بڑے لیڈر، جو سینئر لوگ لیڈر ہیں. شریف مناز صاحب ہیں یہاں پہ. میں کہتا ہوں کہ کون سے کول صاحب نے ان کو اختیار دیا کہ وہ لیڈیز سے جا کے پوچھیں یا جینٹ سے پوچھیں بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا یا کیا ہوا. یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ لگے گا جنت کس کو ملے گی یا دوزخ کس کو ملے گی. یہ تو سرٹیفکیٹ بانٹتے تھے وہاں پہ. یہ غلط بات ہے. دیکھو، جہاں تک میر صاحب کا تعلق ہے، میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ اس کی بچی کا سوال ہے. ایک علاقے میں، ایک گاؤں میں، ایک محلے میں ایک ڈاکٹر پیدا ہو، سمجھو کہ وہ وہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے نعمت بخشی ہے. ہمارا کسی سے کوئی بیر نہیں ہے. اگر تحصیلدار صاحب نے کوئی غلطی کی ہے، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دیکھ رہی ہے. اب کوئی کس مکان میں رہے گا، کس مکان میں نہیں رہے گا، وہ اس کی اپنی پرسنل لائف ہے. اب ان کے گھر والوں کو ہٹ کرنا، جی ایک بھائی اس کا پروفیسر ہے. مناف ملک صاحب سنو میری بات. جب آپ ان وادیوں کی سیر کر رہے تھے، اس کے بھائی نے آنکھیں جلا کے وہ پروفیسر بنا ہے. آپ ہی کہتے ہیں پڑھ کے پہلے انسپیکٹر بنا پھر تحصیلدار بنا. اگر جناب بھی پڑھتے تو آج آپ اس چیئر پہ ہوتے. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اپنے آپ نے بیک ریکارڈ ہم سب دیکھیں. اس حمام میں سب ننگے ہیں. رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، رشوت دلوانے والا، سب ایک ہی صف میں ہوتے ہیں. یہ حدیث بھی ہے، یہ قانون بھی ہمارا یہی کہتا ہے. میں زیادہ کچھ نہیں کہتا. میں صرف یہی کہتا ہوں کہ جو بھی جیسی بھی جانچ ہو، صاف ستھری ہو، انصاف ملے، سب کو ملے. یہ نہیں کہ تحصیلدار پہ ہی الزام لگے، اپنے الزام کو سائڈ کیا جائے. یہ غلط بات ہے. اور دوسرا سوال میں نے جب پوچھا کہ ان کے انتقال کا کیا مسئلہ ہے، تو انتقال جو ہے ان کا ڈی سی آفس سے ٹوٹا ہے. یہاں پہ ڈسٹرکٹ دربار تھا، یہی ڈی سی صاحب یہاں پہ موجود تھے. یہاں پہ ایک بزرگ اٹھے، انہوں نے چیلنج کیا اس چیز کو، تو وہیں ڈی سی صاحب نے آرڈر کیا، اور یہ جو ہے رجوری میں ہوا. تحصیلدار کا اس میں رول ہی نہیں ہے. باقی شبیر صاحب اپنا دیکھیے جناب، السلام علیکم. جیسے کل کی یہ پریس کانفرنس ہم نے سنی ہے، میں تحصیل درحال پنچایت لیران سے بلانگ کرتا ہوں، ایس ٹی فیملی سے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو انہوں نے یہ بے بنیاد الزام لگائے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہیں. ایسا ہے نہیں ہے. جب سے ممتاز مرزا صاحب درحال میں تحصیلدار آئے ہیں ایز اے تحصیلدار، ٹھیک، انہوں نے بہت اچھے کام کیے. یہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ جو سرٹیفکیٹوں کا یا ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے گاؤں میں جا کے کیمپ کر کے انہوں نے وہاں پہ بھی سرٹیفکیٹیں تقسیم کی. اور ہماری جو ٹرائبل مطلب گجر بکروال لوگ ڈوگو میں جاتے ہیں، جو ان کو راستے میں مطلب پرمٹ راہداری یا وہ چیز دی جاتی ہے، تو وہ بھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے گاؤں میں جہاں پہ ٹرائبل کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کیمپ کر کے سب کچھ دیا ہے. اور یہاں تک کہ کسی کے گھر انہوں نے چائے کا کپ لینے سے بھی مطلب اگر پیار سے کسی نے دیا تو وہ لے لیا.
बाकी जहाँ तक ये कल से चल रहा है, नहीं जी ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब बेबुनियाद है और सब बेबुनियादी बातें हैं। हम इन चीज़ पे कड़ी निंदा करते हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। लेकिन एक माह रमज़ान में अगर एक आदमी ऐसा झूठ बोले तो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा लानती और जहन्नमी है। पंचायत चौकियाँ सी का सरपंच हूँ। मुझे ये वीडियो सुन के बड़ी शर्म की बात मैंने महसूस की कि इन लोगों ने जाके इल्ज़ामात लगाए। अगर कहीं किसी सब्ज़ी वाले से कोई बात हुई या किसी दूसरे दुकानदार से तो पहले इनको मेरे पास आना चाहिए था, मुझे शिकायत करनी चाहिए थी ताकि मैं पता लगवाऊं कि आया ऐसा काम हुआ है या नहीं। जो हेडक्वार्टर सरपंच, जो कि मैं हेडक्वार्टर सरपंच भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अलावा इसके ये जो लोग बोलने वाले हैं, जिन्होंने बोला है, जिनका नाम यहाँ लिया गया है, ये एक प्रोफेशनल जो है जराइम पेशा लोग हैं। ये हमेशा ही इज्जतदार लोगों की इज्जतों पे हाथ उठाते हैं। इसके अलावा जो मीर साहब के साथ हुआ उसमें मिर्ज़ा साहब ने और लोधी साहब ने ये बता दिया कि वो इंक्वायरी जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चल रही है, उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है ये कमेटी का काम है जिन्होंने देखना है। आज एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये सब्जी दरहाल से ले जाते थे, नंबर 2 ईंटों की तो भट्टी यहाँ है ही कोई नहीं है कि वो ईंटें यहाँ से लेके गया। अगर ये इन्होंने कहीं कोई इस किस्म की बात थी तो हमारे नोटिस में क्यों नहीं लाया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथियों ने भी अपनी जो है वो राय रखी है। मैंने भी वो कल जो है ऑडियो वीडियोस देखी है, वो जोरी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मेरा तो मानना इतना है कि एक शायर कहता है, दुश्मनी करो तो इस तरह से करो, ये जम के करो और इस तरह से करो कि जब कभी दोस्ती हो शर्मिंदगी ना हो। सरकार का एक सेट प्रोसेस है, इंक्वायरी कमेटी बनी है, डीसी साहब ने उस पर इनिशिएटिव लिया, इंक्वायरी कमेटी बनी। इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद अगर मैं जाऊं तो किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन करूं तो ये मुनासिब नहीं है, बिल्कुल गलत। मतलब मैं अगर मेरी औकात जो है, मैं एक सरपंच हूं या एक पार्टी का एक वर्कर हूं, लीडर नहीं कहूँगा, मैं वर्कर हूं, तो मुझे किसी पे भी जब सवालिया निशान उठाऊं तो मुझे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मेरी अपनी कितनी कदर कीमत है समाज में, क्या मुझे कोई सलाम करता है इस शहर की में जब गुजरता हूं, ये चीजें जरूरी है। बेशक बिल्कुल। जहां तक रहा सवाल, परसों की एक बात थी उसने कि देखिए जी फाइलें चेंज हो गई। देखिए आज के जमाने में बड़ी बदकिस्मती है कि ये कोई आदमी कह रहा है कि फाइलिंग में चेंजिंग कौन कर सकता है। आज जो फाइल है वो आपका ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट है, बिल्कुल, और उसको दिल्ली से मॉनिटर हो रहा है, कौन ऑफिसर कितना काम कर रहा है, किस ऑफिस में कितना काम हो रहा है, कितनी वो फाइल आगे जा रही है पीछे आ रही है, वो हर दिन जो आप उस पर लोड करते हो, अपलोड करते हो, वो दिल्ली वाले भी देख रहे हैं और आपके चीफ सेक्रेटरी भी देख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर अपने पोर्टल से देख रहे हैं। ये इस चीज का कोई मकसद ही नहीं बनता है कि भाई फाइलों की क्या चेंजिंग करनी है। किसी ने जब जिस अफसर जो जहां से चला जाता है उसके बाद वो उसको हाथ नहीं लगा सकता। पेन वाली तो बात नहीं है, आप कोई भी सर्टिफिकेट में आरबीए लो, पीएसपी लो, दूसरा लो, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, ऑनलाइन आपने लेना है, बिल्कुल। तो फाइल कहाँ से रह गई? फाइल की तो बात खत्म हो गई। मैं ये उन साथियों सबकी गोशगुजार करूँ, जहाँ तक मेरे किसी साथी की कंप्लेंट है, उसमें ये नहीं कहेंगे वो कंप्लेंट गलत है, ये नहीं कहेंगे वो कंप्लेंट सही है, लेकिन सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें एक कमेटी बनाई है, एडिशनल डीसी नौशहरा करतार सिंह साहब को उसने चेयरमैन बनाया है, इज इंक्वायरिंग। अब जो दूध और पानी आएगा वो आने दो, लेकिन भाई ये थोड़ा है कि आप किसी की कैरेक्टर एसिनेशन करें, हम किसी की जात के पीछे पड़ जाएं। ये केएस अफसर बनाने के लिए वक्त लगता है, माँ बाप को टाइम दरकार होता है, और एक केएस अफसर ऐसे नहीं पैदा होता है। बाकी जहाँ तक रहा सवाल, मान लो किसी ने कहा मेरा इंतकाल खारिज हो गया, वो जो इंतकाल पहले हुआ था वो भी गलत था। इसलिए गलत था कि मैं आपको गोशगुजार कर दूं कि उस इंतकाल की आज भी वो जगह जो है वो एडिशनल डीसी ने एज ग्रेनियर कमीशन उस पर स्टे लगाया हुआ है, उस पर एक ऑलरेडी इंतकाल सेट असाइड हुआ है। तो वो एक तहसीलदार बीच में आए तो उन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगा पैसे लिए, लेकिन भाई कैसे किया उन्होंने, वो इंतकाल ही गलत किया। तो जो चीज़ गलत किया तो उसको अगर नए डीसी साहब ने उसको सेट साइड किया तो मैं उसको इंडोर्स करता हूँ, अच्छी बात की है। अब मैं कहूँ जी मेरा इंतकाल गलत हो गया जी, मुझे उसने कोऑपरेट नहीं किया तो मैं डिप्टी तहसीलदार के खिलाफ चला जाऊंगा, वो गलत बात है। इस पे हम नहीं कहेंगे, हम समाज ये चूंकि एक आदमी गलती करता है तो पूरा इलाका बदनाम होता है। अब सारी दराल की बात है, यहाँ कल कोई ऑफिसर आएगा, परसों ऑफिसर आएंगे, वो गलत सिग्नल जाता है। मैं अपने दोस्तों को ये कहूँगा कि हमें कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से पहले हमें ये देखना चाहिए हमारे अपना क्या सिस्टम, क्या हम किस मुकाम पे हैं, और
हमारा माजी क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या है, हाल क्या है, और इस सारे पे देखते हुए जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, तो हमें देखना बहुत चाहिए। अच्छा, बाकी बहुत मैं ये नहीं कहूंगा, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मुबारकबाद साहब, बहुत अच्छा। आप इसकी इंक्वायरी नहीं करें। इंक्वायरी अगर कोई आदमी गलत है, डिफॉल्टर है, तो ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंस। बिल्कुल बट डजंट मीन कि हम किसी के कैरेक्टर एसोसिएशन करें, इस पे नहीं है। एक ऑफिसर होता है, उसकी अच्छी खासी सैलरी है, मैं इस पे शुक्रिया और कहूंगा। इतने बड़े अच्छे रॉयल खानदान से जिस पे वो खुद ही गिनती कर रहे हैं। थैंक यू। जी, ये बड़े ही अफसोस की बात है कि कल से जो हम सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो वायरल देख रहे हैं, जिसमें पूरी दरहाल को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि इस किस्म की जो बदनामत होती है उसकी वजह से कभी भी कोई अफीसर जो है उस ब्लॉक में, उस तहसील में कभी जाना नहीं चाहेगा। बेशक, बिल्कुल। और मैं अपनी ज़ाती बात ये कहूँगा कि मुझे भी इस फील्ड में काम करते हुए 20-22 साल हो चुके हैं। आज तक दरहाल वालों ने कभी किसी भी गलत अफीसर को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर तहसीलदार मुमताज इकबाल मिर्जा जो था वो इतना करप्ट होता तो मुझे नहीं लगता है कि 1 साल से ज्यादा वक्त भी वो यहाँ पे गुजार सकता। 3 महीने भी नहीं। अब यहाँ पे अगर एक आदमी 3 साल से एज ए तहसीलदार दरहाल में काम कर रहा है तो उसके अंदर कितनी अच्छाइयाँ थी वो उनको भी इंडोर्स करना चाहिए। और उसके अलावा अगर 100 में से 5% लोग जो हैं वो इस चीज़ की अगर खिलाफत करते हैं, उनकी नज़रों में कोई बात है तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती। और खास करके जो कंप्लेंट है जो मीर साहब की तरफ से है, हम उनकी भी कोई ये नहीं कहते कि उन्होंने क्यों किया। अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो हम उस पर भी अफसोस करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हुआ तो उनकी कंप्लेंट होने के बाद डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने जो एक कमेटी कंस्टिट्यूट की और जिसके चेयरमैन जो हैं वो एडिशनल डीसी करतार सिंह साहब जो हैं उनको मुकर्रर किया गया। वो साफ और शफाफ इंक्वायरी करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें जो कल सोशल मीडिया में हमें देखी हैं कि दरहाल से सब्जी ले गए, दरहाल से ईंट ले गए, दरहाल से बजरी ले गए, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ये चीज़ें होती तो फिर साथ में हम खुद अपनी ज़बान से ये भी कहें, हमारे साथी जो कह रहे थे कि जी ये पहले सब इंस्पेक्टर थे, इनके वालिद साहब सब इंस्पेक्टर थे, इनके भाई प्रोफेसर थे, ये खुद जनाब इंस्पेक्टर थे तो आज KS ऑफिसर हैं। तो अगर इतनी चीज़ें अल्लाह ने उनको दी हैं तो फिर वो क्या किसी के पास जाके सब्जी लेके जाते, वो किसी के पास जाके तो उसके घर से ईंटें उठा के ले जाते, या किसी के खोखे से वो सीखें उठा के ले जाते। ये अपना जहन भी कभी किसी का तस्लीम नहीं करता है। ये सब जो है ये मनगढ़ंत बातें हैं। हम पूरे तौर पे हम इसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और अपने इलाके को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं उन साथियों से भी ये गुजारिश करूंगा कि उनको भी सोच समझ के इस किस्म की बातें जो है, हम मीर साहब के साथ हैं, हम कहते हैं अगर उनके साथ कुछ हुआ तो उसकी इंक्वायरी हो, लेकिन ये भी नहीं कि पूरी दरहाल को बदनाम किया जाए और पूरी दरहाल की तरफ से ये कहा जाए। ये चीजें बिल्कुल गलत हैं, हम इनके साथ नहीं है। इसलिए आज की हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी इसी वजह से रखी थी। हम मीडिया के माध्यम से ये कहेंगे कि हमारी दरहाल में से किसी भी शख्स को पूरी दरहाल को बदनाम करने का अधिकार नहीं है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं उमर दराज मिर्जा, सरपंच पंचायत थाना मंगसी और बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ। पिछले दिनों यहाँ पे एक जो न्यूज़ देखने को सामने आ रही है पिछले दिनों से कि यहाँ पे हमारे मैजिस्ट्रेट जो मुमताज़ मिर्जा साहब जिनका ताल्लुक बहरोड से है, उन पे एलिगेशंस लग रही हैं और उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने किसी से 5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की है और उसके इवज में उन्होंने जो है PSP इशू करना था। ये जो कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, मैं आपके मीडिया के विसादत से मैं डिप्टी कमिश्नर रजौरी साहब की एक बात बताना चाहता हूं कि एक तरफ से एलिगेशन लग रहे हैं, एक तरफ से ACR साहब के पास एप्लीकेशन जा रही है कि 16,000 रुपए की रिश्वत डिमांड की है, एक तरफ से DC साहब के पास जा रही है एप्लीकेशन, उसमें कहा गया है कि 15,000 रुपए रिश्वत डिमांड की है, और एक तरफ से आप मीडिया पे एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि उसने मुझसे 50,000 रुपया रिश्वत जो है वो डिमांड की है। अब आप इन 3 पहलुओं को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चीज में कितनी सच्चाई हो सकती है। इसमें आप बिल्कुल मैं वाज़िह तौर पर एक चीज कहना चाहता हूं कि आपकी जंग उस कुर्सी के साथ है, आप किसी की फैमिली को मत इन्वॉल्व करिए बीच में। अगर किसी का भाई कोई प्रोफेसर है, अगर वो किसी का फादर जो है
वो लैंडलॉर्ड है, वो अपने घर पे हैं, आप उसके ऊपर बिल्कुल उनके घर वालों को टारगेट मत कीजिए, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट मत कीजिए। उसके बाद जो डीसी साहब ने स्टेप उठाया हम उसका खैर मकदम करते हैं। उन्होंने जो इंक्वायरी कमेटी बैठाई है और इंक्वायरी कमेटी के जो हेड हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है कि जो भी इंक्वायरी होगी वो इंक्वायरी जो है टू दी पॉइंट होगी। अगर उसमें तहसीलदार दरहाल मुलव्वस पाए जाते हैं तो हम पूरी कमेटी के साथ हम जो है कमेटी का पूरा जो है ताउन करेंगे। अगर बिला वजह उन पे इल्जामात दायर किए जा रहे हैं तो वो अगर कमेटी ये कहती है कि इनके ऊपर जो है कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ तो फिर जो है हम जिन्होंने वो इल्जामात लगाए हुए हैं हम उनको इन पब्लिक डोमेन बुलाकर पूछेंगे कि अब आप साबित करिए कि क्या हुआ है। उसके बाद इन शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि पिछले 1.5 साल से तहसीलदार मुमताज मिर्जा दरहाल में काम कर रहा था। उसने पिछले 3 साल से छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबके काम किए हैं, गरीबों के काम किए हैं। ये नहीं कि मैं एक सरपंच हूं तो मुझे उनसे कोई मतलब होगा, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम सच्चाई को बयान कर रहे हैं। उन्होंने ना यहाँ से कोई बजरी उठाई है ना किसी से कोई सब्जी ली है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत 4 लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं किसी को बदनाम करने के लिए, और हम इसको टोटली कंडेम्ड करते हैं। और डिप्टी कमिश्नर रजौरी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए। अगर वो इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं उनको सजा दी जाए, अगर वो मुलव्वस नहीं पाए जाते